नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप पोस्टर पे देख चुके हैं कि मैं किस पे बात करने आई हूँ। क्या ये बात करने का विषय है सेव ट्री सेव फॉरेस्ट। ये सब चीज़ें क्या सिर्फ हमारे लिए ही है, सरकार के लिए नहीं। ये टॉपिक सिर्फ बात का नहीं है, ये टॉपिक जज्बात का भी नहीं है। ये टॉपिक क्या विकास का है या विनाश का है, ये आप डिसाइड करेंगे, ये आप लोग बताएंगे। टॉपिक है हैदराबाद फॉरेस्ट प्रोटेस्ट। आग लगा रखी है इसने पूरी भारत में। क्या है ये टॉपिक? पहले मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाती हूँ, जिन्हें देखिए। उन्हें देखने के बाद भी अगर आपका दिल ना दहले, अगर आपके मन में भी बेचैनी ना हो जाए, तो आप इंसान कहने के लायक नहीं हैं। देखिए ज़रा इस क्लिप को। तेलंगाना में 400 एकड़ जंगल की कटाई शुरू हुई है, जिस पर बहस छिड़ चुकी है कि ये विकास है या विनाश। तो तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद के पास कांचा गाचीबोली एरिया में 400 एकड़ फॉरेस्ट क्लियर करना शुरू कर दिया है। ये एरिया न सिर्फ बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता था, बल्कि कई पशु पक्षियों का घर भी था। लेकिन अब यहाँ IT पार्क बनाने की तैयारी हो रही है। पर सवाल यह है कि जो पेड़ों पर बसे परिंदे थे, जो जमीन पर दौड़ते जानवर थे, वो अब कहाँ जाएंगे? इसके लिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटलिस्ट और अपोजिशन पार्टीज प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 50+ अर्थ मूवर्स रात भर काम कर रहे हैं ताकि जंगल को जल्दी से साफ किया जा सके। लेकिन प्रोटेस्टर्स का कहना है कि ये सिर्फ पेड़ों की कटाई नहीं हो रही, बल्कि सैकड़ों बेजुबानों का घर भी उजाड़ा जा रहा है। सीएम रेवंत रेड्डी ने इस मुद्दे पर क्लैरिटी दी है कि ये लैंड यूनिवर्सिटी की नहीं, बल्कि तेलंगाना सरकार की है। लेकिन इस बात से प्रोटेस्ट और भी तेज हो गए हैं। क्या ये विकास का एक नया कदम है या कई मासूम जिंदगियों का अंत? आपकी क्या राय है, बताइए कमेंट्स में। ఈ ప్రకృతి సంపదను మనం విధ్వంసం చేస్తే ప్రకృతి మన మీద కక్ష కడుతుంది, ప్రకృతి మన మీద ప్రకోపిస్తే మనం చెన్నైలో చూసినాం, అదే విధంగా ఉత్తరాఖండ్ లో చూసినాం, నిన్నగాక మొన్న వాయనాడు, మనం కేరళలో చూసినాం. ఈ రోజు ఇలాంటివన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు
ఈ హైదరాబాద్ నగరాన్ని రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత మన అందరి మీద ఉన్నది. ఇది ఒక సుందరమైన నగరం. The area of this campus is 2,500 acres. This is a deep reserve forest, right? We have almost 3,000 to 4,000 peacocks, more than 1,500 deers. We have species of tortoise, snakes, porcupines. We have a lot of endangered species in the campus because this is not 203. This is not a small campus. People think that this is 100, 200 acre campus. This is 2,500 acres campus, and when they are demolishing it, most of the animals are dying. They are being traumatized, and there is no rescue vans. There are no veterinary vans to address the condition of the animals. Most of the animals are dying. If we want to go and document, our students are not being allowed inside. So we urge the civil society of Hyderabad and India to please look into this issue and please arrange some facilities so that the rescue vans, veterinary vans can go inside and protect these species. Honestly, I'm here for the same reason. Yeah. We have the equipment, we have the vans, we have all the support needed. Yeah. We are just waiting for that one connection who can let us inside. If you can help us in getting that connection, Yeah. we are No, okay but to send the the rescue problem vans. is the police have barricaded us. They are not letting us go. We want to go and see what is the position of animals. Not even the staff, not even the students. staff. Not even the staff. What is the solution we have now? I mean, do you think there is a solution for us to get the rescue vans inside? Yes, if you can speak with the DCP and all these people and negotiate with them, we can go. Because we are not obstructing their plan, right? We just want to save the animals. If this is an obstruction, they'll stop us. Now, since we are dealing with animals, we want to protect them, which is why we are doing it. So they'll let us go. But what is the college authority doing? With all this going on right now, what is the college authority? उम्मीद है क्लिप्स देखने के बाद कुछ तो आप लोगों को समझ आया होगा। तो पहले थोड़ा विस्तार में समझ लेते हैं कि क्या केस है ये। हैदराबाद कांचागाची पोली एरिया में 400 एकड़ फॉरेस्ट रातों रात क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। जंगल को रातों रात काटना शुरू कर दिया। सुना है 50 से ज़्यादा अर्थ मूवर्स
उस जंगल को काटने के लिए बुलडोज़र लेकर वहाँ इकट्ठा हो गए, जिसके कारण वहाँ के पशु पक्षी जिनकी आपने अभी थोड़ी देर पहले पुकार सुनी, मेरा दिल दहल गया सुनकर। आपका भी दिल दहला होगा। कहते हैं ये एरिया बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ कई पशु पक्षी का घर भी है, लेकिन अब सरकार यहाँ पर आईटी पार्क बनाना चाहती है। अब सवाल ये है, जो पशु पक्षी वहाँ रह रहे थे वो कहाँ जाएंगे? क्या पेड़ काटना पर्यावरण के लिए सही है? अगर ये बात आप फर्स्ट क्लास के बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी मना करेगा। उसे भी पता है, उसे भी सिखाया जाता है कि एक पेड़ की कीमत क्या है। इसलिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटलिस्ट और अपोजिशन पार्टीज ने इसका तगड़ा विरोध करा है। जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इसे रोका जा रहा है, पिट रहे हैं। पर अर्थ मूवर्स रातों रात आकर जंगल साफ कर रहे हैं। इस बात पर वहां के सीएम रवंत रेड्डी जी ने बोला है कि ये जमीन यूनिवर्सिटी की नहीं है, ये जमीन सरकार की है। क्या यहाँ सोचिए, क्या यहाँ जमीन का मुद्दा है या पेड़ काटने का जो नुकसान है उसका? जो बेघर हो जाएंगे ये उनका मुद्दा है। समझिए जरा इस बात को। मेरा दिल कांप गया क्योंकि इसका फल और इसका नुकसान खाली हैदराबाद नहीं, आपको, हमें, हर उस प्राणी को, हर उस जीव जंतु को भुगतना पड़ेगा जो इस अर्थ पे रह रहा है, जो इस पर्यावरण से जुड़ा है। पर्यावरण से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब रहिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। आइए एक हरित हैदराबाद के लिए साथ खड़े होते हैं। आप और मैं इतनी दूर रहकर इन बेजुबान जानवर के लिए कुछ नहीं कर सकते, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें पता चले कि हैदराबाद में क्या हो रहा है। कल को ये और सिटीज़ में ना हो, इसके लिए आवाज़ उठाएं, इनके हक के लिए लड़िए। थैंक यू। इस हैदराबाद प्रोटेस्ट में किसका फायदा है? क्या जनता का फायदा है? आईटी पार्क बनना गलत है या सही है वो मैं नहीं जानती, लेकिन जंगल काटना बिल्कुल गलत है ये मैं जानती हूँ। अगर फॉरेस्ट काटकर जानवरों को, पशु पक्षियों को बेघर कर आप आईटी पार्क बनाते हैं, तो अपनी किताबों में भी लिख दीजिए कि आप पेड़ काटें, वहां पर वुडन हाउस बना दें। तरस जाएगी ये धरती, इस धरती पे रहने वाले लोग एक एक बूंद पानी के लिए। गौर करिए, हालात को समझिए, हैदराबाद वालों का साथ दीजिए। मैं उनके साथ हूँ। उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को शेयर कर उनका पूरा साथ देंगे।